नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन हिंदुस्तान। इस वक्त की खास खबरों में मैं हूं आपके साथ ज्ञान प्रकाश पांडे। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने गोवा के राज्यपाल बी.एस. श्रीधरन पिल्लई द्वारा संपादित पुस्तक ट्रेडिशनल ट्रीज ऑफ भारत का विमोचन किया। पणजी के राजभवन के ओल्ड दरबार हॉल में आयोजित पुस्तक विमोचन में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी शामिल हुए। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ कहते हैं, यह जरूरी नहीं कि हम ही करें, हम दुनिया भर से पिछले समाजों की औद्योगिक क्रांति और ग्रीन हाउस जैसे उत्सर्जन के लिए किए गए कामों के उत्तरदायी हैं, लेकिन हमें अपने समुदायों की रक्षा के लिए अपनी भूमिका निभानी होगी। जैसा कि हम जानते हैं, जलवायु परिवर्तन सिर्फ समृद्ध समाजों को ही प्रभावित नहीं कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन समाज के सबसे हाशिए पड़े लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। यह समुद्र पर निर्भर रहने वाले मछुआरे समुदायों को प्रभावित कर रहा है, और जहां बढ़ते जलस्तर मछुआरे समुदायों को प्रभावित कर रहे हैं जो कृषि निर्वाह खेती पर निर्भर है। यह वास्तव में हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग की रक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन के प्रति हमारी प्रतिक्रिया है। जब हम घर पर पूजा करते हैं तो एक प्रतीकात्मक है। भारतीयों के रूप में हमारा पूरा जीवन पूरी तरीके से पर्यावरण से जुड़ा हुआ है। This is not our doing necessarily. We are the inheritors of what previous societies across the world have done in the pursuit of the Industrial Revolution and the greenhouse gas emissions. But we have to perform our role to protect our communities. And as we know, climate change is not just affecting the affluent societies. Climate change is affecting the most marginalized of societies. It's affecting the fishing communities who depend upon the sea, and where rising water levels are affecting the fishing communities, those who are dependent on agriculture, the subsistence farming. So it's really our response to climate change is to protect the most vulnerable sections of our society. Therefore, this connection between trees and human well-being is beautifully captured in Traditional Trees of Bharat, which emphasizes the deep-rooted significance of trees in our culture and environment. It reminds us that traditional knowledge about the importance of trees, whether for medicinal properties, their role in ecosystems, or cultural symbolism, must be preserved and passed on. It is our collective responsibility to protect trees and in turn safeguard the future for generations to come. There is a symbolism, right? When we do a puja at home, you do a Satyanarayan puja at home, you will have the kalash in which you will put the form of the mango branch, or you will put up the plantain tree, the banana tree on all four sides. So our whole lives as Indians are completely embedded on the environment. Finally, we must all ask ourselves the question, what is the environmental cost of our practices? For instance, many of our professional activities require excessive documentation and the use of paper. According to some studies, producing 100,000, 1 lakh, that is, A4 size sheets, 80 GSM of paper from news sources, requires over 8 trees and almost 2,000 kilowatts of energy. This stark reality urges us to rethink our habits and find ways to minimize paper use. I encourage all of you to consider this impact and adopt practices which prioritize sustainability, whether through digital documentation, recycling, or using recycled paper. Every small effort counts in saving trees and ensuring a healthier planet for future generations. ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन हिंदुस्तान, दिल्ली। केंद्रीय राज्य मंत्री उपभोक्ता खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण नींबू बेन जयंती बाई अयोध्या पहुंचे। उन्होंने रामलला का दर्शन पूजन किया। इस दौरान उन्होंने अयोध्या के विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की तारीफ। उन्होंने कहा कि रामलला के दर्शन के दौरान देश की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या विकास के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र, झारखंड व उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर चुनाव को लेकर नींबू बेन जयंती बाई ने कहा कि विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक विकास के आयाम प्राप्त किए हैं। सबका साथ सबका विकास मंत्र लेकर गरीब, महिला, किसान सबके लिए विकास किया है। चुनाव में भी जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है और आशीर्वाद देगी। उन्होंने कहा कि अयोध्या में होने वाले दीपोत्सव की तैयारी पर नींबू बेन ने कहा, अयोध्या में भव्य राम मंदिर के दीपोत्सव की तैयारी चल रही है। करोड़ों लोग रामलला के दर्शन कर रहे हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए लोग मन्नत भी मांगते हैं। वहां पहुंचकर सबको अच्छा लगता है। आज अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में मैंने दर्शन किया है। मैंने देश की समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना की है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और मुख्यमंत्री
श्री योगी जी के नेतृत्व में अयोध्या के विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और विकसित भारत की संकल्पना के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। माननीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में अनेक विकास के आयाम प्राप्त किया है। सबका साथ सबका विकास का मंत्र लेकर गरीब, महिला, किसान, खेडूत, किसान सबके लिए विकास किया है। चुनाव में भी जनता जनार्दन ने बहुत आशीर्वाद दिया है, अब भी आशीर्वाद देंगे। अयोध्या मंदिर में भव्य दीप उत्सव मना रहे हैं। करोड़ों लोगों वहाँ राम भगवान के दर्शन के लिए आए हैं और सब मनोकामना पूरी करने के लिए मन्नत भी मांगते हैं, तो सबको अच्छा लगता है। अयोध्या से मयंक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। रायबरेली में देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहां पर तेज रफ्तार 2 बाइक अनियंत्रण होकर बिजली के पोल से टकरा गई, जिसमें 3 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। मामला लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बराई गांव के पास का है, जहां पर सिरनी थाना क्षेत्र के रहने वाले 3 युवक 2 बाइक को सवार होकर किसी कार्यक्रम से लौट रहे थे। तेज रफ्तार होने के चलते उनकी बाइक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे लगे बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। सभी मृतक सरेनी थाना क्षेत्र के गोपाली खेड़ा गांव के रहने वाले थे। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अभी पुलिस वालों के द्वारा 3 लड़कों के सर को लाया गया था, जो कि पूरे चंद्रशेखर मंदिर चालक के सरेनी थाना के रहने वाले बाहर के करीब एक्सीडेंट हुआ था। उनका हमने परीक्षण किया तो 3 मृतावस्था में थे। उपरांत हमने पुलिस वालों को बता दिया कि ये करीब 6-8 घंटे पहले की वो एक्सीडेंट है, क्योंकि राजा मोटरसाइकिल ट्रेन के अपर लेवल में ये बता के एक कागजी जो होती है यहाँ सिनेमा भेज जाती है। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। गाजियाबाद के थाना मसूरी क्षेत्र के गांव भूण मड़ी में खेत की मेड़ को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद बढ़ा तो मारपीट के बाद पथराव शुरू हो गया। छतों से जमकर ईंट पत्थर चलाए गए, जिसका वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में एएसपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम ने बताया कि 20 अक्टूबर को थाना मसूरी के ग्राम भूड़ गढ़ी में सिकंदर और जाहिद के परिवार के बीच खेत की मेड़ को लेकर विवाद हुआ था। विवाद में कई लोग घायल हुए थे। विवाद के बाद थाना मसूरी में तैनात सब इंस्पेक्टर प्रशांत कुमार की तरफ से मुकदमा लिखवाया गया था। इसमें पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। आज दिनांक 20/10/24 को थाना मसूरी क्षेत्र स्थित ग्राम भूड़गढ़ी में स्थानीय लोगों में खेत की मेड़ बनाने को लेकर आपस में झगड़ा हो गया, जिससे दोनों पक्षों में एक दूसरे पर लाठी डंडे से वार किया गया तथा एक दूसरे पर ईंट भी फेंकी गई, जिससे दोनों पक्षों को चोट आई। घटना की पुनरावृत्ति की संभावना को देखते हुए चौकी इंचार्ज के द्वारा थाना मसूरी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया तथा इनमें से दोनों पक्ष मिलाकर कुल 7 अभियुक्तों को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। मौके पर शांति व्यवस्था पूर्णतः कायम है। आवश्यक अग्रिम विधि कार्यवाही की जा रही है। गाजियाबाद से देवानंद वर्मा की रिपोर्ट। रायबरेली में लालगंज कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी चौराहे के पास स्थित दुग्ध प्लांट उस समय हड़कंप मच गया जब प्लांट में काम करने वाले टैंकर ड्राइवर मनोज कुमार की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। दरअसल प्लांट के कुछ कर्मचारी मनोज को घायल अवस्था में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लालगंज लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। जैसे ही डॉक्टर ने कहा कि मनोज की मौत हो गई, उसके साथ गए कर्मचारी मौके से फरार हो गए। अस्पताल के डॉक्टरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस सूचना पाकर अस्पताल पहुंची और 100 को कब्जे में लिया। साथ ही पुलिस ने टीम दुग्ध प्लांट में पहुंची कर्मचारियों से बताया कि अचानक गिरने से उसकी मौत हुई। इसके बाद मौके पर फॉरेंसिक टीम बुलाई गई। फॉरेंसिक टीम को मौके पर से खून के धब्बे भी बरामद हुए। पुलिस अब पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई। आखिर मनोज की मौत की असल वजह क्या थी? कहीं उसके साथियों ने उसके साथ किसी घटना को अंजाम तो नहीं दिया या ना फिर महज हादसा है? फिलहाल कर्मचारियों से पूछताछ चल रही है। मृतक मनोज अलीगढ़ का रहने वाला था। परिजनों को सूचना दे दी गई है। आज सीएससी लालगंज से मेमो प्राप्त हुआ लगभग 11 बजे के आसपास कि एक व्यक्ति जो डेयरी में यहाँ काम करता था उनको डेयरी वाले लेकर के आए और ब्रॉड डेड था, वो लोग छोड़ के चले गए। इस सूचना पे मौके पे पुलिस पहुंची है। तो मृतक
के आधार में नाम उसका मनोज कुमार यादव, सन ऑफ रतन सिंह, जनपद अलीगढ़ का रहने वाला है। यह ट्रक ड्राइवर था और ट्रक से दूध लेकर आया था, दूध खाली करा चुका था। मौके पे जाने पे अभी स्पष्ट नहीं हुआ कि किसी घटना से इसे चोट लगी है या घटना कारित की गई है या दुर्घटनावश चोट लगी। जांच के हर पहलुओं पे जांच की जा रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को सदर रवाना किया। रायबरेली से वैभव सोनकर की रिपोर्ट। बने रहें खबरों में, देखते रहें न्यूज़ वन हिंदुस्तान। नमस्कार। आप देख रहे हैं न्यूज़ वन हिंदुस्तान।